Hello everyone, good evening. I'm Chef Neelav. I'm the founder of Ornamental Mithai and the head chef. So today we are making bhapa doi, which is also known as baked yogurt. You say baked yogurt. There are a lot of names and it's a very classic dish of Kolkata. So thank you Amul for providing us a platform to tell people how the quick recipe could be made at home. So I'll be showing you the ingredients I'm going to be using. We'll be using Amul. I have Amul Mithai Mate, which we're going to be using. And as we know, there is a little bit of sourness in curd, so we will balance the sweetness with Amulya, which is the dairy whitener and the milk powder. And if you think that it is too sour, then you can add a little bit of cream if required. Then we have a little bit of jaggery powder we're going to be using to make it more classic like Kolkata. This is a palm jaggery, which is also called as Nolan Gold, which was available at my place. Not easily available. It's always available in the month of December in Kolkata, winter special. So you see in Calcutta people eat gud ka rasgulla, they eat gud ka bhapa doi and a lot of stuff. There's some yogurt what I've already taken. This is Amul ka dahi. So this is a very simple recipe. Equal proportion of milk made and dahi. So we will be using the same thing. So this is 200 grams. So 200 grams of dahi, 200 grams of Amul Mithai made. So whisk to mix it well. There should be no lumps in your mixing. I like little bit of jaggery in my bhapa doi because classically people use jaggery while making their bhapa doi. So I am using a bit of jaggery powder. 1 tablespoon of jaggery powder. So you get that dark color of bhapa doi. So these are the pots we're going to be using. People say kullad, you say people use it for firni, all kind of mithai. It's available at my place. You can use glass bowls. You can use different kind of molds to bake it. In pastry, people freeze it and then eat it. But if you like warm, then you can try this because these are very good. They're porous, and what happens with this is they absorb the moisture from your curd. So it's good to use that. So I am adding. Okay, chef, people are asking for the recipe name again. We are making bhapa doi, which is baked yogurt, Kolkata dessert. So in this recipe, we just to give you a little recap on this, we have used Amul ka dahi, Amul masti. We have used milk made. You get Amul ka mithai made. So equal proportion of dahi and mithai made to be used. Along, if you find your dahi to be कुछ ज़्यादा खट्टा है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप उसमें अमूल का थोड़ा सा क्रीम ऐड कर सकते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा उसका टेक्सचर
क्रीम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप उसकी जगह पे अमूल्य जो कि उसका बेसिकली मिल्क डेयरी वाइटनर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका जो खट्टापन है थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमने इसे मिठाई में डाला है। मुझे थोड़ा गुड़ अच्छा लगता है बिकॉज क्लासिकली कोलकाता में जब भी भापा दही आपको देखेंगे तो आपको हमेशा गुड़ के साथ भरा हुआ मिलेगा। तो वो भी मिठाई में यूज़ करते हैं बट थोड़ा सा गुड़ ऐड करते हैं ताकि वो जो गोल्डन कलर आता है वो बहुत ही देखने में प्लीजिंग होता है। तो हमने गुड़ का पाउडर यूज़ किया है और हम लास्ट में इसके ऊपर एक अच्छा सा गुड़ का सिरप डाल के इसको हम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने पाम जागरी यूज़ करूँगी। तो अभी हमने ये कुल्हड़ में अपना डाल दिया है दही। हम अपना अवन आप इसको करने के लिए कुकर में कर सकते हैं अपनी इसकी स्टीम। ये डबल बॉयलर मेथड में काम किया जाता है इसमें। तो आपको बेसिकली इसको स्टीम पे पकाना है। तो आई विल बी बेसिकली यूजिंग दिस OTG, स्मॉल OTG। इसको अभी हम सेट करेंगे। हमने इसको 200 पे रखा है। हार्डली 15 मिनट के अंदर इसका हो जाएगा काम। तो विल टेक द ट्रे, विल कीप दही, सो दिस द वे वी आर कीपिंग इट। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर हमें थोड़ा स्टीम देना है। बी वेरी केयरफुल कि कई लोग गलती करते हैं, पहले पानी डाल देते हैं फिर उसके अंदर रखते हैं तो हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जब अवन में रखें तो आप उस टाइम पे उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इधर पानी डाल दें। अभी जब तक हमारा भापा दही अंदर बेक हो रहा है, अभी हम तब तक हम गुड़ का सिरप बनाएंगे। मीनवाइल अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर नाउ टेकिंग पाम जागरी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें गुड़ लेना है, थोड़ा पानी के साथ कुक करना है। थोड़ा हम धीमी आंच पे रखेंगे ताकि गुड़ जल ना जाए। गुड़ अभी हम पका रहे हैं, जिसका हम बेसिकली गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आप ये सब डिशेस हमारे ऑर्नामेंटल मिठाई के पेज पे जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग भापा दही बनाते हैं, भापा रसगुल्ले बनाते हैं, कुछ क्लासिकल डिशेस जैसे होती हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी तरीके से कर सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे अभी हम गुड़ से बना रहे हैं, मैंगो का सीज़न आ रहा है तो आप मैंगो भापा दही कर सकते हैं। इफ़ आपके बच्चे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नॉर्मली हेल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उनको कुछ नया खाना है, बिकॉज अभी क्वारंटीन में हम सब लोग घर में बंद हैं, कुछ नया ट्राई करने को नहीं है। तो आप फ्रूट्स के साथ कुछ कर सकते हैं। बेक भापा दही बनाने के बाद उसको बेक करके थोड़ा टाइम ठंडा करके नाइस अच्छे से मैंगोस लगा के थोड़ा कैरमल डाल के उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से आप उसको प्रेजेंट। Okay, chef, people are asking for
temperature and time तो of हमने the इसको baking? डाला है 180 के टेम्परेचर में, और इसको मैक्सिमम टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। तो आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर उसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ा सेटिंग आपको अभी जब वो आपको तो आप देख सकते हैं इस नॉलेन गुड़ को बहुत ही बबली हो गया है। नाउ आई विल स्विच इट ऑफ। गैस को हम बंद कर देंगे। आप इसका फ्लो देख सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं थिक करना है, हमको इसे मेल्ट करना है ताकि हम इसके ऊपर गार्निश कर सकें। इसको हम एक बोल में ले लेंगे अलग से। थोड़ा ठंडा करने के लिए। जाएगा मीनवाइल हमको थोड़ा सा दही पे नजर रखना है। आप देख रहे हैं दही ये सेट हो गया है। जस्ट हमको बहुत केयरफुली इसको आप देख सकते हैं एकदम सेट हो गया है। उसको ऊपर लेयर आ गई है, पतली सी लेयर आ गई है, सेट हो गया। एक्चुअली जब आप स्टील बोल, ग्लास बोल और इन सब में काम करते हैं तो उसमें इशू क्या होता है, उसको थोड़ा बेकिंग में टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर या किसी मिट्टी के बर्तन में करते हैं उसको टाइम कम लगता है, क्योंकि आपका बर्तन भी थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। Chef, a viewer wants to know if the mode of the oven was convection. I guess yes. The mode of the oven should be convection itself. So now we will garnish it. सो नाउ आपने देखा ये दही है, हमने जो नॉलेन गुड़ का सिरप हम उससे इसको गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्का सा अगर आपको गुड़ पाउडर को डस्ट करना